ang koina na sini adong suno paringke sing tawuk sini flag hoisting ni bakak sini Gomati ni subject DC Gomati ni chairman sini Jyotish Devarma sir Jyotish Jamatia sir tai West Ningai sini chairman sir Vishwarai Devarma borokta tini sini flag hoisting klaitongo sing joto yaba khorob laine sing joto yaba khorobai sing borona hambai janol laine tai yaba haikeno bele bele ka hambai joto no ang sini volunteers ono koinai dakti klai yango pavilion o kipil phane bagai taya ba haikeno sini belbari ni SZDC sini sir Santunu Devarma borom rina na bagai koina na sini volunteers no sini belbari SZDC ni sini sir Santunu Devarma borom rina na bagai bele ke naita toklai sini players rok tai borno chere rok escort klai tang tlangai tongo tini match between West Vikings tai Gomati Gladiators ni bakak dike tini football tournament ngai tongo Super League awa haikeno tini semi final 22nd match TSL lingai paringkai borok line of basamani yagolon ang koina hanai sini joto oro phai manjak phane tahutai bukson ang koina joto basalai joto janija asuk thayo basawui sing national anthem no sing respect line borom line and paringkai sing joto basalai nei joto no koina janija asuk thayo basawui sing national anthem sing no respect line जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you so much, people. Jani jasu theo Suleiman ka seng tai tabuk sini trini adong sunang koina hanai sini players sobai malai borno greet khai cheng lai na bagai. Hello, check, hello, check. Ladies and gentlemen, you are here at
You're watching us live from Komalung Stadium, and today is the 22nd match of the TSL 2024-25, and the match between West Vikings and Gomoti Gladiators. Ladies and gentlemen, this is the semi-final round, and later this month will be the final round. And so thank you so much for being live with us. You can watch us live on TTAADC official page, and thank you so much for joining us. And for people, audiences, those who are here with us at the stadium, would like to thank all of you for being such a wonderful audience. And thank you so much for your love and support. And I would like to thank all the sponsors of the TSL 2024-2025. And so the honorables here this afternoon will greet the players and children, and we will get started with the match in just a while. And so it's such a wonderful weather today, such a wonderful ground at Komalung Stadium. We love to give thanks to the TTAADC government for taking such initiative and giving such a platform to the youngsters. I'm sure there will be many more such events that will happen, and people will be encouraged by the kind of initiative that the government is taking. I'm sure both my Hindi commentators here and me, Milton Deeparma, Hindi commentator Mithun Das, and Soromita Bhomik with me. We're really glad to be able to take this opportunity to commentate on the match here this afternoon. Soromita. Absolutely, ये सच में हमारा सौभाग्य है कि आज इस मैदान में हम हैं एज अ कमेंटेटर, एंड नो डाउट इतने मैचेस से मिथुन जी कैसे इतने मैचेस चले गए पता ही नहीं चला। इस क्षण का हमें इंतजार था इतने दिनों से कि कब सेमीफिनाले आएंगे, एंड देखते ही देखते आज सेकंड सेमीफिनाले है। यहाँ ग्रुप ए से ग्रुप बी से दोनों बेहतरीन टीम्स जुड़ गए हैं। ग्रुप ए से है, ग्रुप बी से है, पर इतने दिनों से जो मैचेस देखे थे उसमें कुछ अलग बात थी, और आज अलग बात कुछ ये है कि आज है सेमीफिनाले, और आज का ये सेमीफिनाले बता देगा कि कौन अपना फाइनल स्पॉट बना लेता है फिनाले के लिए। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। मिथुन जी, व्हाट डू यू से? देखिए, सबने अच्छी मेहनत की है शुरू से लेकर अंत तक, और दोनों टीमें जबरदस्त टीम है, सभी प्लेयर बहुत अच्छे, और किक ऑफ के साथ एक खेल की शुरुआत होगी। जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो दोनों ही टीमें आज इस जगह पे आई है, ए टीम और बी टीम, तो दोनों में सक्षमता है और दोनों में इतना पावर है कि अंत भला तो सब भला कहते हैं। तो आज देखना कि अंत तक इस खेल को कौन ले जाता है, और एक रोमांचकर खेल होगा। क्यों मिल्टन जी? Yes, today it's going to be really an awesome match because it's the second day of the semi-final round, and I'm sure all the players are, and I would like to thank all of you for being such a lovely audience and supporting us, giving us a wonderful event like this. And so the children, have escorted the players today, and they look so beautiful and handsome. We'd like to thank the children for giving such a wonderful presentation today. And so much the kind of support that we are getting from all of you. जी बिल्कुल, ये स्वागतम जो है बच्चों का, ये खेल को दर्शाता है। चाहे ये अनुभूति बचपन से ही आगे लेके जानी है, इसलिए इन छोटे बच्चों से ही खेल की शुरुआत की आरंभ किया जाता है। कहते हैं आरंभ है प्रचंड है, आज वो प्रहार है, क्योंकि आज देखना है कौन जाएगा फाइनल में अपना प्रतिद्वंदिता करने के लिए। तो आप सब जो जाए हमारे साथ जुड़े रहिए लाइव मैच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्वेश्चन और यार यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैटल शुरू होने वाला है मिल्टन जी और सोरोमिता जी, क्योंकि इस खेल का जो आयोजन है बहुत दिनों से हो रहा है, और आज एक ऐसी जगह पर है दोनों टीमें कि जिसने 8 गोल, वेस्ट विकिंग्स 10 गोल, गोमती, तो दोनों ही टीमें जबरदस्त है। एक लास्ट में पावर रखती है और एक टीम पूरे में पावर रखती है। क्या कहेंगे आप?
Yes, but somewhere or the other, the players today looks really sturdy and confident on winning the match. Let's see what happens in the whole day of the match. The kind of gameplay that they're going to show, the kind of teamwork that they're going to show today. Soramita, let me also ask you, what kind of a gameplay are we supposed to see today? What do you have? Anything in your mind? आई गेस आज एक बेहतरीन मैच हम देखने वाले हैं मिल्टन जी। जहाँ तक आपको पता है कि टीम बी से है, ये ग्रुप बी से हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स हैं। उन्होंने आपने कहा है मिथुन जी कि 10 पॉइंट्स उनके हो गए हैं। वहीं वेस्ट वाइकिंग्स कुछ कम नहीं है, ग्रुप ए में 8 पॉइंट्स लेके वह बढ़ोतरी लिए थे उन्होंने। एंड हमने देखा है इतने मैच में कि वेस्ट वाइकिंग्स का जो एग्रेसिवनेस है, जो मैच के प्रति जो एग्रेसिवनेस है, जो फुटबॉल के प्रति जो एग्रेसिवनेस है, वो सही तरह है, पॉजिटिव तरह से है। तो किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। स्पेशली वेस्ट वाइकिंग्स अगर हम देखें, जो मैंने एनालाइज किया है, सेकेंड हाफ में वह ज्यादा एनर्जी के साथ आते हैं, विच आई नोटिस्ड। एंड वहीं अगर हम गोमती ग्लेडिएटर्स को देखें, उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट गोल भी दिया है 5 और 6। तो हम ये आशा रख सकते हैं कि वह आज बहुत बेहतरीन देंगे। उन्होंने अपना प्रैक्टिस किया ही होगा फॉर श्योर, बिकॉज आज जो दोनों टीम है वो डेफिनेटली यही सोच के आए हैं कि हमें फिनाले में जाना है और कुछ ही दिनों में फिनाले होने वाला है। तो ये आखिरी स्पॉट है, ये उनको मिस नहीं करना है। इतने दिनों, इतने मैचेस में अगर वह जीते हैं तो इसीलिए ही जीते हैं ताकि इस मुकाम में आ पाए। तो डेफिनेटली आज दोनों ही टीम नहीं चाहेंगे कि वह हारे और दोनों ही टीम अच्छा खेलेंगे, अपनी तरफ से अच्छा देंगे। सो देखना अब ये है कि फर्स्ट हाफ में कौन फर्स्ट हाफ लेता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ बहुत कुछ दर्शा देता है। दोनों ही टीम का रिकॉर्ड है कि सेकंड हाफ में वह अलग तरह से आते हैं, बट स्टिल फर्स्ट हाफ कौन लेता है वो देखना डेफिनेटली बनता है मिल्टन जी। But I think, today that's going to be, very easy match in the beginning, in the first half, because I think the kind of gameplay that they're going to showcase, probably they would not want to, lose their energy or stamina in the first half and, save the energy for the second half, and would love to play very safely so that they can win the game even in the second half. So Mithun, what do you have in your mind today? That is it the Gomati Gladiators that's going to win, or the West Vikings that's going to win the match? What do you have in your mind? मिल्टन जी, सबसे पहली बड़ी बात है प्लानिंग। किस प्लानिंग के साथ दोनों टीमों को उतारा गया है, क्या फॉर्मेशन बनाया गया है। या आपने 4-4 या 5-5 का जो फॉर्मेशन है वो बनाया है, या 3-4 का फॉर्मेशन बनाया। मेरे कोच के साथ और मैनेजर के साथ बात चल रही थी कि आज का दोनों ही टीम जो है इस जगह पे ये फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर आज डिफेंस अच्छा होना चाहिए। कल हमने देखा डिफेंस की वजह से कितने सारे गोल खाने पड़े साउथ लायंस को। Absolutely. तो वही बात है, अगर आप इस तरह के खेल आज हम नहीं देखेंगे, हम आज देखेंगे कि अच्छा खेल हो और जितने भी दर्शक यहाँ बैठे हैं और जो बाहर है सबको एंटरटेनमेंट कराएगा ये गेम। Very much. And so let's get back to the pavilion, into the commentary box, and we will see you live in just a while. The match is ready to begin, and hopefully we will have a very beautiful match today here at Komaling Stadium. Thank you so much for joining us live at TTAADC official page, and we'd love to thank the TTAADC government for taking such initiative for the youngsters, and we will be able to see many new players coming up from the TSL 2024-25. And so thank you so much, people, for giving all your support and helping us to be able to manage such an event, a beautiful match like this here at Komaling Stadium. And so it is to see who's going to win the match today, but later this evening we will get to know who is the owner of the finale later this month. नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको स्वागत है इस कोमलंग के स्टेडियम से। आज का मैच बहुत ही निर्णायक साबित होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि एक टीम फाइनल ऑलरेडी जा चुकी है और आज देखना है कि वेस्ट विकिंग्स या गोमती ग्लेडिएटर्स, क्या ये दोनों में से कौन अपना वो पहाड़ चुंबी खड़ा करता है, अपना तरीका, वो तरीका बनाइए और इस टीम को एक मजबूत जगह बनाइए। और शुरू हो गया है ये गो किक ऑफ के साथ रेफरी का व्हिसल। देखिए किस तरह से पैरों की कलाकारी यहाँ पर चल रही है। ओ, थोड़े के लिए यहाँ पर अच्छी पास की जरूरत है।
सीधा खेल दिया है रफ्तार के साथ। ओह, मिस हो गया, लेकिन नहीं, ये आज लंबी तान खींच ली है गोमती ने। वो नदी की धार जहां बहेगी आज चूर होके बहेगी। सोरोमिता, क्या वेस्ट विकिंग्स और गोमती का मैच क्या निर्णायक साबित होगी आज दर्शकों के लिए? आज ये जो मैच है वो काफ़ी रोमांचक साबित होगा, क्योंकि जितने लंबे लंबे पासेस यहाँ खेले जा रहे हैं इस स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही आई कैन एज्यूम दैट कि आज एक बहुत अमेजिंग मैच में मिलने वाला है। ये सेमीफाइनल हिस्टोरिक रहेगा, ऐतिहासिक रहेगा, यादगार रहेगा फॉर श्योर। पर तब तक के लिए, जब तक हमारे ऑडियंस, आई रिक्वेस्ट यू, आप सब प्लीज़ अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द जुड़ जाए हमारे ऑफिशियल पेज में। जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सभी को शेयर कर दे, सो दैट वो भी हमारे साथ इस मैच में लाइव जुड़ जाए, लाइव फ्रॉम खुमलुंग स्टेडियम। यहाँ फिर से एक लाइक धक्का मुक्की का माहौल ना बने। आई रियली वांट टू कि ऐसा कुछ ना हो जो कल हुआ था, हमने देखा था जो कल हुआ था साउथ लायंस एंड एंटलर्स के बीच। सो आई रियली डोंट वांट कि ऐसा कुछ आज सिचुएशन बने, बट दो आई रियली वांट कि 5 मिनट में जो कल बेहतरीन एक प्रदर्शन देखने को मिला था एंटलर्स के द्वारा, जो गोल हुआ था, मैं चाहती हूँ कि आज एटलीस्ट ऐसा एक गोल, ऐसा एक बेहतरीन गोल हमें फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में हमें ऐसा कुछ मिले, ताकि ये गेम और ज्यादा रोमांचक बन जाए। साथ ही लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार मैं आपको लाइनअप बता देती हूँ आज हमारे साथ इस पहले क्षण में कौन से प्लेयर्स जुड़ गए हैं। फ्रॉम गोमती ग्लेडिएटर्स हमारे कैप्टन है विनोद जमातिया, हमारे गोलकीपर हैं सुरजीत जमातिया। यहाँ एक अच्छा पास था पर अच्छा सेव। देन गोमती ग्लेडिएटर्स में है रतन जमातिया, बुलेमिनी जमातिया, साबत जमातिया, भक्त जमातिया, सुमन लेप्चा, ख्वाचंग जमातिया, गोविंद दास एंड मेतई एंड आनंद जमातिया। एंड हेड कोच हैं गोमती ग्लेडिएटर्स के तपन जमातिया। वहीं अगर हम लाइनअप बात कर ले वेस्ट वाइकिंग्स की, तो सुमंत देवबर्मा जी हैं कैप्टन, आकांक्षु देवबर्मा गोलकीपर, कुमार देवबर्मा, बिलाश देवबर्मा, रकित देवबर्मा, सुबन देवबर्मा, वीरू देवबर्मा, क्रिजस्टॉम तांबी, जेम टाम्बो, CTM चिपुरी रीरो एंड सैम्यूल डोंकर। सो अमेजिंग टीम जुड़ गई है। साथ ही साथ वेस्ट वाइकिंग्स के हेड कोच हैं समरजीत देवबर्मा जी। सो यहाँ एक अच्छी पास, कोशिश अच्छी जा रही है, पर दोनों के ही, हमने कहा था एकदम फर्स्ट में कि दोनों की डिफेंस काफ़ी अच्छी है। दोनों ही टीम काउंटर अटैक्स काफ़ी अच्छा करते हैं। स्पेशली अगर हम देखें पिछले कुछ मैच के गोमती ग्लेडिएटर्स, वो काफ़ी अच्छा काउंटर अटैक करते हैं, डिफेंस अच्छा रखते हैं। तो आज उनको वो दर्शाना है, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स किसी से कम नहीं है। बढ़िया, देखिए किस तरह का गोमती ने आज ले पकड़ा है, पैरों से बॉल छूटनी नहीं चाहिए। इस तरह की रणनीति के साथ मैदान पर लेफ्ट विंग राइट विंग को अच्छा से यूज कर रहे हैं वो, डिफेंस भी तगड़ा बना के रखे हैं। लंबा शॉट यहाँ पर, क्या नहीं, देखिए डिफेंस, कॉर्नर मिलेगा और ये हेड देके बॉल को बाहर। ये डिफेंस कहीं दर्शाता है कि आपके अंदर वो डर है कि अगर थोड़ी सी भूल हुई, चूक हुई तो गोल निश्चित है। तो इस तरह की जो डिफेंस है उसको देखिए, रिप्ले देखिए आप, रिप्ले में साफ झलक रहा है कि किस तरह से वो मेहनत जो रंग लानी थी वो थोड़े के लिए कहीं से कट ऑफ हो गई और एक कॉर्नर मिला है। क्या ये, जी हाँ, वो देखिए ये कॉर्नर कभी कभी क्या होता है सोरमिता, कॉर्नर जो है ना वो सही साबित भी हो जाता है। अगर आप अच्छे एक उछाल के साथ बॉल डालोगे ना सेंटर पे, वहां अगर आप प्लेयर होंगे ना तो हेड के साथ या फिर किसी तरह से कट करके वो गोल हो जाए। इस तरह का देखिए ये पासेस के ऊपर बहुत कुछ है। अगर वहाँ सेम टाइमिंग में उनके प्लेयर्स मौजूद रहे और वो बॉन्डिंग हो तो डेफिनेटली वो गोल हो जाता है। हमने वो देखा है पिछले कुछ मैचेस में भी। साथ ही साथ आप एक बार देखिए, नजर डालिए गैलरी पर आज मिथुन जी, कितना भरपूर आज हमारे साथ ऑडियंस जुड़ गई है, क्राउड जुड़ गए हैं, जो अपने टीम्स को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई मस्ट से आज का ये जो मैच है ये डेफिनेटली यादगार होने वाला है। जी बिल्कुल, फिर से एक कॉर्नर मिला है यहाँ पर, ग्राउंड शॉट है। क्या ये आज देखने को मिलेगा कि मिल्टन जी, क्या ये आज ग्राउंडेड शॉट खेलते हैं ज्यादा या फिर उठा के खेलते हैं?
क्योंकि कल हमने देखा ग्राउंडेड शॉट बहुत ज्यादा थे. Correct. And so, what do you call it? The kind of gameplay the Gomati Gladiators showing today is really aggressive even from the beginning itself. And so I think they really have a very strong and aggressive kind of a gameplay today. Let's see what happens. But yes, probably today, most of the time you are going to see, ground shots rather than having more of in the air. And so the kind of gameplay that they're going to show in the beginning will showcase their kind of energy in the field today. And so I'm sure the West Vikings are prepared, and also the Gomati Gladiators really looking strong so far in the match. And so I'm sure that both the team looking to win the game. And yes, somehow there can be a danger, and there is a goal for the Gomati Gladiators. You see, they really looked aggressive even in the first few seconds, and so it is the first goal for the scoreboard on the scoreboard for the Gomati Gladiators. And it is a wonderful shot. It is, and you see the replay out there. You see the replay out there, the way the ball has been shot from the corner, and some way or the other, the ball went into the goal post. The goalkeeper tried saving it, but somewhere or the other he missed out, and there should have been. Yes, you can see the replay how the player shot over there. The goalkeeper tried his best, but there were not too many defenders. Just one he tried, but the ball straight away went into the goal post. Mithun, what would you say to such kind of a shot in a match like this? बिल्कुल आज पूरा मजेदार गेम होगा, क्योंकि जिस तरह से गति पकड़ी है ना गोमती ग्लेडिएटर ने जिस तरह की गति पकड़ी है, आप देखिए वो उठा के शॉट कम खेल रहे हैं और ग्राउंडेड शॉट ज्यादा खेल रहे हैं. मतलब रणनीति है कहीं. उनके जो मैनेजर है सुभाष, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी रणनीति कुछ इसी तरह से तैयार करके अंदर बैठी है कि देखिए किस तरह से ये अच्छे पासेस, छोटे पासेस, ग्राउंडेड शॉट, आगे बढ़ते हुए 14 नंबर के खिलाड़ी, और क्या ये गोल में परिवर्तन. 11 नंबर आगे बढ़ते हुए, क्या 11 नंबर कुछ करेगा? बिल्कुल सही साबित. इसी तरह का एग्रेशन चाहिए जिस तरह से हमने कल देखा था सोरोमिता, जिस तरह का एग्रेशन था, वो एग्रेशन आज मुझे गोमती में दिख रहा है. बिल्कुल, गोमती ग्लेडिएटर्स पहले उन्होंने 5 मिनट में किया था, आज इन्होंने 7 मिनट लिए, पर पहला एक गोल हो गया है. तो आप ये देखिए, ये मैंने देखा है गोमती ग्लेडिएटर्स में उनके स्ट्रेटजीज काफी अच्छी होते हैं, डिफेंस के साथ साथ काउंटर अटैक्स काफी अच्छे होते हैं. उनको पता है किस तरह से, देखिए जरा यहाँ अच्छी कोशिश, यहाँ शायद पर यहाँ अच्छी डिफेंस, ग्रेट डिफेंस. वंस अगेन डिफेंडर्स वहां थे, वो भी एक नहीं 4 डिफेंडर्स वहां थे. डिफेंस बढ़िया, ये तगड़ा होना चाहिए. जो साउथ लायंस का हमने कल नहीं देखा था. आप दोनों टीमों के लिए कह रहे हैं हम. वेस्ट विकिंग्स, आप वेस्ट विकिंग्स की बात कर लिए, गोमती ग्लेडिएटर, अगर आपका डिफेंस तगड़ा हो जाएगा ना तो खेल में मजा आएगा. जो दर्शक देख रहे हैं हमें हर जगह से, उन्हें मजा. देखिए गोलकीपर उछाल, देखिए ऐसा लगता है टाइटैनिक पानी में गिरा और सब जंप मार रहे हो उससे. उछाल, और ये उछाल अच्छी है. ये दर्शाता है गोमती का जो वो जज्बा है ना, वो दर्शाता है. यहाँ तांबी ने अच्छी कोशिश की थी यहाँ बॉल लेके गोल करने की, बट वो हो नहीं पाया. सोरोमिता हमेशा इनकी जो ये टीम की जो बॉन्डिंग है, जैसे आपने नाम लिया अभी टेम्बो का या सिपिरियो का या क्रिजेस्टम का, इनकी एक अच्छी बॉन्डिंग है यहाँ पर. वो देखिएगा आगे बढ़ के खेलते हैं और अच्छी कॉम्बिनेशन चलती है इनकी. बट आज चीज नोटिस किया है मैंने मिथुन जी कि हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स में जैसे सोनजॉय ने पहले मैच में ही एक गोल लिया था. बोयर, वो लोग नहीं खेल रहे हैं. 14 नंबर के जर्सी, कुछ कमाल. शुभान, ये बंदा ने कहर डाल रखा है लेफ्ट विंग में. बिल्कुल. हाँ सोरोमिता, देखिए किस तरह से आगे जाते हैं रफ्तार के साथ. देखिए फिर से ऊपर से जो बोयर ने किया था वो आज ये कर रहे हैं, पर आज बोयर नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ कुछ स्ट्रेटजी होगी फॉर श्योर. देखिए जिस प्लेयर खेल चुका है उनकी कमी तो खलेगी, रिप्ले देखिए, रिप्ले आ गया है अब स्क्रीन पर. देखिए किस तरह से वो सेव. 14 नंबर के जर्सी, देखिए ये माइंडसेट देखिए गोमती का, किस तरह से आगे जाना है, किस तरह से गोल को
वो अगर पास मिल जाता ना किसी को, अगर वो उधर पे खिलाड़ी होता तो पक्का वो गोल था। देखिए फिर से 14 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। गोमती ने वो रणनीति पकड़ ली है आज। अनंत ऑफसाइड। यहाँ एक अच्छी कोशिश, यहाँ फिर से गोमती ग्लेडिएटर्स के पास है चॉइस पर यहाँ फिर से बॉल आउटलाइन के बाहर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमें अभी ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, रिक्वेस्ट एवरीवन आप सब प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग अस। दिस इज द सेकंड सेमीफिनाले एंड यहाँ आज के इस मैच से पता चल जाएगा कि कौन फिनाले में जुड़ने वाले हैं। तो अब एक अच्छी चांस ले सकते हैं वेस्ट वाइकिंग्स। अभी देखना ये है कि वेस्ट वाइकिंग्स, अरे बढ़िया एक शॉट, बढ़िया लॉन्ग शॉट पर यहाँ गोमती ग्लेडिएटर्स ने चॉइस ली है कि थोड़ा उनको समय देते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी बढ़िया होती है। मुझे ये अच्छा लगता है कि वो जिस तरह से खेलते हैं गोमती ग्लेडिएटर्स, उनका स्ट्रेटेजी, उनकी जिस तरह से जो रणनीति वो लेकर मैदान में उतरते हैं वो बेहतरीन है। साउथ की जो टीमें है ना, मैं उनकी रणनीति देखी है। जी, जैसे साउथ लायंस अच्छी टीम थी, कल नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीती, लेकिन टीम बहुत बढ़िया थी। बिल्कुल, उनको दुख नहीं मनाना चाहिए क्योंकि उनकी टीम अच्छी थी। अरे वो जितने भी मैच उन्होंने खेले थे सभी वो जीत के आए हैं। कल देखिए, अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप सेमीफाइनल तक आएंगे ही नहीं। आप यहाँ तक पहुंचे हैं वही बहुत बड़ी बात है। तो कल का दिन शायद उनके लिए नहीं था, बट वैसे ही आज ये देखना है कि आज अभी क्योंकि फर्स्ट 7 मिनटों में ही एक गोल हो गया है गोमती ग्लेडिएटर्स का, तो देखना ये है क्या वे बढ़ोतरी लेते हैं या वेस्ट वाइकिंग्स उनको टक्कर देंगी, अच्छे टक्कर देंगी। देखिए जिस तरह से यहाँ पर आज एक फॉर्मेशन के साथ खेला हो रहा है, क्या जो धारावाहिकता ना, जो धारा है मैदान में, वो अलग ही दिखने को मिल रही है। अब इसी फॉर्मेशन के साथ खेलिए, आगे बढ़िए, तो गोमती को सक्सेस बनाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर डिफेंस दोनों का तगड़ा है। बिल्कुल वेस्ट विकिंग्स का डिफेंस भी बढ़िया है। देखिए वहां पर गोल पोस्ट के पास जो गलती कल हुई थी वो गलती आज नहीं हो रही है। बिल्कुल एक बार। और दोनों आप देखिए, दोनों गोलकीपर सतर्क है कि कब उनके पास बॉल आएगी, क्योंकि उनको अच्छे से पता है एक गोल। अरे यहाँ एक अच्छा शॉट था पर मिस। गगन को छूती हुई फुटबॉल आसमान से नीचे बौछार की तरह गिरती हुई, लेकिन गोल नहीं मिली। चलिए, मैदान धीरे धीरे दर्शकों का आवागमन, यहाँ पर हमारे पीछे भी दर्शक बैठे हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे खेल इस जगह पहुंच गया ना, एक्साइटमेंट लोगों से रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे खेल उतना एंटरटेनमेंट बन जाएगा लोगों के लिए। स्पोर्ट्स एक्चुअली है क्या, वही है, बन गया है मिथुन जी। जी बिल्कुल। आज आप सोच सकते हैं दिस इज द 22nd मैच, 22वां मैच है हमारे इस टूर्नामेंट का, पर लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इतने दिनों में आपने देखा है जो एक्साइटमेंट थी वो सेम एक्साइटमेंट अभी भी है सेमीफिनाले तक आते तक। शुरू में तो फुटबॉल का ऐसा लग रहा है वातावरण सा छा गया त्रिपुरा पे। और वेदर देखिए एकदम परफेक्ट है आज के इस फुटबॉल के मैच के लिए। जी हाँ, मैदान में पानी डालने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये विंडी वेदर है ना, थोड़ा सा हवाएं चल रही हैं, अच्छा माहौल है, तो इस जगह में है ना थोड़ा सा गर्मी भी गर्माहट लगती है। पासेस देखिए आप, गोमती की आंखें आपकी उनके पैरों पे जमी रहेगी, और इतना सुंदर से छोटे पासेस दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वही बात, कितने छोटे छोटे पासेस आप दे रहे हैं अपने। आज उन्होंने सोच के रखा छोटे पासेस, तब हम गोल में। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ की जो लेफ्ट विंग है ना, जो लेफ्ट साइड से जाते हैं, वो मुझे तगड़ी लग रही है। चले, अब 11 नंबर हो चाहे 14 नंबर के खिलाड़ी जो भी है, अनंत, उनकी देखिए ये जो धारावाहिकता है इनकी इस साइड से लेफ्ट विंग से, वो बहुत अच्छी है। मिल्टन जी हमारे साथ सहमत होंगे कि आज ये जो एक तरह का फ्लो है सोरोमिता, वो फ्लो बहुत बढ़िया बना कर रखे गोमती ने अब तक। बिल्कुल ट्राई तो वेस्ट वाइकिंग्स भी कर रहे हैं। नहीं, वेस्ट वाइकिंग्स अच्छा ट्राई कर रहे हैं, पर उनका ये देखिए इतना लंबा, ये जो लंबा उन्होंने दिया है शॉट, ये वहां उनके प्लेयर खड़े नहीं है, तो उनको वो देखना है। ये स्ट्रेटेजी अगर वो थोड़ा लगाएंगे तो आई गेस अभी पहले कुछ क्षणों में उनका भी गोल होगा। मैं पहले कह रहा था, आप ग्राउंडेड शॉट के लिए, ग्रास शॉट के लिए गेम को उस जगह लेके जाइए, क्योंकि आप जो ऊंचे शब्द खेलेंगे ना, उठा हुआ, तो उससे क्या होता है, वो प्लेयर एडजस्टमेंट में टाइम लग जाता है, क्योंकि वो आपका हर प्लेयर वहां तक तब तक पहुंच जाता है। बॉल जितना हवा में रहेगा तब तक आपका वो जो आप जिस प्लेयर को दे रहे हो उसका डिफेंस आ जाएगा उसके पास, और उसको वो रोक लेगा, तो अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। जी ये देखिए अच्छी शॉट है, यहाँ अच्छी शॉट है, इसको काम पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये गोमती ग्लेडिएटर्स है, उनको पता है किस तरह से काम में लगाना है। पर यहाँ फिर से एक लंबा शॉट, यहाँ एक भी प्लेयर मौजूद नहीं है वेस्ट वाइकिंग्स के, एक है यहाँ
जस्ट आई गेस किर्गिस्तान है यहाँ, इसके अलावा और कोई नहीं थे वहाँ। तो वो देखना है कि आपके प्लेयर्स जहाँ हैं। आज मैंने एक चीज़, अभी तक जो 15 मिनट का खेल ऑलरेडी हो चुका है, पर यहाँ 15 मिनट के खेल में लगभग थोड़ा एक चीज है कि पासिंग में गोमती ग्लेडिएटर्स आई गेस थोड़ा अच्छा खेल रहे हैं। क्यों मिल्टन जी, व्हाट डू यू थिंक? You see the kind of gameplay that they are showing today here in the match at Komalang Stadium. Really awesome to see. Even in the first 7 minutes, they have already scored the first goal, and so it's really nice on the part of the Gomoti Gladiators. You know, Gomoti Gladiators, even from the beginning, they have been doing really awesome job. True. And have been playing really nice and beautiful game. But nevertheless, the West Vikings, I still remember the match at Lefunga, where they played the match, and at the end, in the last few minutes or so, they have made a very good impression on the players and also to the audiences, because they scored at least another 2 even at the end of the at least 4 minutes or so. At the end of the 4 minutes show, they have done a tremendous job. And so today it's always important not to underestimate the West Vikings as well, because they also have been performing really well so far and have come up to this level. And so today it is to see how they are going to manage the team. And probably, I don't know if there is need of change in the players, but during that time of a period, we saw so many changes in the players of the West Vikings at the end, and that was the highest change in player in any match so far in TSL. That's what we actually remember so far. Yes, substitute players. And so today, it is to see how the West Vikings will, manipulate the game in the first half or the second half. But the Gomoti Gladiators really doing well so far. देखिए मिल्टन जी, ये सब्स्टिट्यूट जो है ना, वो एक्चुअली उसको रखा जाता है कि आप बाद में उसको काम पे लगा सके। लेकिन आपने जिस गेम की बात की, लास्ट के 4 मिनट में जो गोल थे, वो आगे काबिल तारीफ थी। वो तो एंथम भी क्रिजेस्टॉम के बहुत ही तरकीबन गोल, जो मेहनत का नतीजा था, वो बहुत मेहनत की थी अंत के 4 मिनट में। लेकिन आज मैदान में सामने गोमती ग्लेडिएटर है, तो आप सावधान और विश्राम दोनों हो जाइए। क्यों मिल्टन जी? Absolutely, because yes, now the West Vikings are taking the opportunity, but somewhere fail the opportunity. You need to take advantage. You need to take advantage of such a situation and really shoot hard into the goal post, so that you actually make your first number on the scoreboard. Yet, let us see what will happen later today, and before the first half, if they can actually somehow manage to score as many as possible, that would be really awesome for both the team. जी बिल्कुल, इस तरह का मैच आपको ये बड़ी श्रृंखला थी, बहुत बड़ा सीरीज चला इसका, और दिसंबर से आई गेस का मैच चल रहा है और मार्च चल रहा है। तो इतना बड़ा लंबा मैच चल रहा है, और ये टीम कई टीमों से खेल के आज प्रतिद्वंदिता करके यहाँ पर पहुंची है, तो उनका जो ताकत है आज देखने को मिलेगा। Correct. And so it is needless to say hello that dear audiences, thank you so much for being with us so far. Again, that's offside out there, and signal being given by the linesman on the ground. And so people, thank you so much for joining us live once again here at Komalang Stadium, and you're watching us live on TTAADC official page. And so we'd like to thank the officials, and also let us talk of the referees on the ground. Mithun, talking of Sibajoti, the referee, main referee on the ground today, he really looks fit and fine, really active. The kind of sportsmanship he shows in the ground is really awesome, and he's been in many national and international games, and he's been one of the top referee in the state of Tripura. Such
people should come up, and more referees like him should actually come up, so that we have some of the best officials on the ground. देखिए सब चीजें डेडिकेशन होनी चाहिए आपको इसके पीछे. आपको अगर डेडिकेशन नहीं होगी तो बनेंगे नहीं. मैंने सर से सुना है कि वो खेल से 3-4 घंटा पहले खाना नहीं खाते. देखिए मौका यहाँ पर बन सकता है क्या. डिफेंस तगड़ा डिफेंस यहाँ पर. कोई मौका नहीं. फिर से देखिए वहीं पे डी बॉक्स के अंदर एक गेंद. क्या इसको लपक लेगी गोमती. उठा दिया नोक पे. इसको देखिए डिफेंस. बाहर गेंद. बहुत बढ़िया डिफेंस यहाँ पर. यही चीज आपकी काबिलियत को दर्शाता है. क्या आपका मापदंड क्या है खेल में, उसने गोमती ने आज साबित कर दिया है. अब तक 20 मिनट के खेल में 1-0 की बढ़त के साथ गोमती आगे, और टीम का सिलेक्शन उम्दा और जीते हुए खेला. बहुत सारी टीमों का परिवर्तन कर दिया गया. बहुत सारी टीमों को, बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं खिलाया गया. चलिए ड्रिंक्स ब्रेक है. आप बात करते हैं आप इस खेल की. देखिए जिस तरह से ये गोल हुआ है वो काबिले तारीफ था. वो गोल जो गोमती ने किया था 20 मिनट में. तो अब वेस्ट विकिंग्स को बाहर से ये ड्रिंक्स ब्रेक में शायद उनके कोच बता रहे होंगे कि मिल्टन जी कि किस तरह का रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी 0 है. क्योंकि अगर आपको 0 से अगर हीरो बनना है तो आपको अभी कुछ करना होगा, क्योंकि गोमती का जिस तरह का एग्रेशन है ना अभी, वो तो अच्छा है. आपको भी कुछ करना है. See, why the West Vikings actually need to take change and make a strategy right now is because the kind of a gameplay that the Gomati Gladiators now showing will actually drain the energy, and the West Vikings will have to take the advantage of this time and work out on this matter at this point of time, and so that they are able to somewhere or the other make their first score on the board. That's what they should be doing at this point of time. Definitely. डेफिनेटली एक चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस की है कि वेस्ट वाइकिंग्स अपने जो अभी एनर्जी है वो सेव ज़रूर कर रहे हैं, पर अगर इसका एडवांटेज गोमती ग्लेडिएटर्स ने ले लिया और 1-2 और गोल्स अगर उन्होंने कर लिए तो उनकी अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी. इसके बाद उनको पकड़ना मुश्किल है. जैसे अभी भी आपने देखा वेस्ट वाइकिंग्स ऑलरेडी ट्राई ज़रूर कर रहे हैं. यहाँ देखिए, यहाँ रिप्ले आप देखिए, ये जो बेहतरीन गोल हुआ था, ये जिस तरह से गोल हुआ था आपने देखा होगा. देखिए जरा कितने सही तरह से अपॉर्चुनिटी को जिस तरह से इन्होंने यूज किया है, जो सही क्षण लिया है उन्होंने, जो सही टारगेट उन्होंने फिक्स किया है. ऑलमोस्ट गोलकीपर ने बचा लिया था, पर उससे निकलकर हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स ने ये कर लिया गोल. तो ये आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है. मुझे लगता है वेस्ट वाइकिंग्स भी ये कर सकती है. उनमें ये काबिलियत है. अच्छे प्लेयर्स हैं वेस्ट वाइकिंग्स. आप रकित को देखिए, बिलाश को देखिए, बीरू देपरमा जी को देखिए, इवन जेम टम्बो है, अच्छे सैम्यूल है, अच्छे प्लेयर्स है. यहाँ देखिए एक ही जो प्लेयर है वो पूरा लेकर चले जा रहे हैं. उनके पास ये जज्बा है. अगर उनके साथ एक प्लेयर होते तो शायद ये भी गोल हो जाता. सो दे आर हैविंग दिस स्ट्रेटेजी कि नहीं यार, मुझ में ये है कि मैं कर सकता हूँ. ये है उनमें. देखिए आपस में बातें हो रही है उन प्लेयर्स के मैं वहां खड़ा था यार, तू मेरे को वहां देना था भाई, गोल तो होता ना, मैं पास देता. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से थ्रो इन वेस्ट विकिंग्स का. अच्छी हल्की पास यहाँ पर, बहुत ही अच्छा यूज यहाँ पर पैरों का. देखिए नीचे से निकाल लिए. टैलेंट और यहाँ अच्छा पास. यहाँ एक भी गोमती के ग्लेडिएटर के एक भी प्लेयर्स नहीं है, सो यहाँ शायद पास नहीं हो पाएगा. पर डिफेंस अच्छी है नो डाउट वेस्ट वाइकिंग से. यहाँ 3 लोग हैं, सो ओके प्लेयर्स हैं यहाँ मौजूद. पर फिर से अच्छा शॉट, अच्छी कोशिश. ओके सो यहाँ ट्राई अच्छा कर रहे हैं हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स की. एक गोल अलग से हो जाए, एनी हाउ हो जाए. जैसे यहाँ एक बार अभी साबत के पास आया था बॉल पर, अभी यहाँ अच्छी पास. पर वेस्ट वाइकिंग्स नो डाउट डिफेंडर्स हैं वहां मौजूद, तो